Hello students, how are you? We have completed exercise 3.4. Now we are coming to exercise miscellaneous chapter 3rd. हमने 3.4 तक कंप्लीट कर ली है और चैप्टर 3rd की जो मिसलेनियस है दैट इज लास्ट, अब वो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये, तो इनका ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ए मैट्रिक्स इज गिवन टू अस 0 1 0 0। शो दैट AI प्लस BA की होल पावर n is equal to a to the power n into I plus n a to the power n minus 1। n minus 1 ये whole power n minus 1 पावर जो है, this power is of a only। ba ये हमको प्रूव करना है, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to n। This means natural number, and we know that natural number starts from 1। We can say natural number or positive integers, both of them are same। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि this question is based on principle of mathematical induction which we have studied in class 11 chapter 4। वहाँ chapter 4 में हमने class 11 में पढ़ा था Pn जो एक फाइनल स्टेटमेंट होती है, ठीक, उसको प्रूव करते हैं हम लोग by taking n is equal to 1। 3 steps are there in this method, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में। पहले मैं आपको बताऊं कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, वो क्लियर कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट n इज इक्वल टू 1। पहले हम n 1 के लिए प्रूव करेंगे, LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। उसके बाद फिर n इज इक्वल टू स्टेप सेकंड में n इज इक्वल टू k, एंड इन स्टेप थर्ड n इज इक्वल टू k प्लस 1। इफ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, then it is true for n is equal to k and n is equal to k plus 1। n 1 के लिए ट्रू होगा, LHS RHS इक्वल होंगे तो k के लिए भी होगा और k plus 1 के लिए भी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया है I is the identity matrix of order 2। अगर ये नहीं लिखते सपोज क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो हमको पता है, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि when A this matrix is order of order 2 into 2, that means I will be of also order 2 into 2। I भी हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सो इट्स क्लियर। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें और फिर मैं इसका प्रूफ आपको देने जा रहा हूं कि कैसे प्रूव करना है। नाउ स्टेप देखिए, Pn is a statement, Pn that is principal statement। For n is equal to 1, for this we have to prove, for n is equal to k, for this we have to prove, and for n is equal to k plus 1, for this we have to prove। Pn show such that ai plus ba की होल पावर n is equal to a की पावर n into I plus n a to the power n minus 1 b into a। Step first, that is put n is equal to k, n is equal to 1, for n is equal to 1, first step। Second step will be n is equal to k, and third step will be n is equal to k plus 1। So for n is equal to 1, that is p1। That means now we have to put this value of n, जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर आप देखिए n हमें कितना पुट करना है 1। We have to put n is equal to 1 जहां पर लिखा हुआ है n की वैल्यू। That means p1, we can write it p1 is this p1 ai for n is equal to 1, that means p1 ai plus ba की होल पावर 1। So ai plus ba, n is how much we have taken 1। This is equal to a की पावर n is how much 1, so a की पावर 1
into I plus n, that is 1, because n is equal to 1, a, that is into a, 1 into a, that is a itself, n minus 1, 1 minus 1 into ba. 1 minus 1 will give you 0, and when any laws of indices x to the power 0 is equal to 1, हमने पढ़ा है किसी की भी पावर 0 हो और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, so its value is equal to 1. So on further solving we are getting a की power 1, that is a into I, plus a की power 1 minus 1, that is 0, a की power 0, that is 1 into ba, so ba. Here we are getting on LHS ai plus ba. Now see, LHS is equal to RHS. This shows that for n is equal to 1 it is true. n is equal to 1 के लिए true हो गया. Now we are coming to next, that is for second step, and that is for n is equal to k. n is equal to k, n belongs to natural number. This implies that k also belongs to natural number. On LHS, when we are putting this value of k in LHS, that means we are getting ai plus ba की whole power k. This is equal to a n, that means a to the power n, a to the power k. I as it is, no change, plus n, that means k, a as it is, n minus 1, n is equal to k, n किसके equal है, k के equal. So write it here, k minus 1 ba. नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना, जहां पर n लिखा हुआ है प्रिंसिपल स्टेटमेंट में उसमें आपको उसको n को k से रिप्लेस करना है. Now step third, it's 2. Now for step third, n is equal to k plus 1. Now we are proving it for n is equal to k plus 1. तो जहां पर n लिखा हुआ है for, now it is true for n is equal to k. We'll write it. It is true for n is equal to k. Now for n is equal to k plus 1, for n is equal to k plus 1, and this is our third step. तीन स्टेप है, n is equal to 1, n is equal to k, and n is equal to k plus 1. So we are writing ai plus ba की whole power n here, that is equal to k plus 1. This is equal to a to the power n, a to the power k plus 1 into I plus k plus 1 n is how much, k plus 1, a to the power n is how much, k plus 1 minus 1 ba. K plus 1 minus 1 you can cancel, further you can write it, this is equal to a to the power k plus 1 I plus k plus 1 a to the power k ba. Now this value we are getting on RHS, ये हमको RHS मिल गया. LHS is equal to this much. Now what we do, we will solve this LHS. इस LHS को solve करेंगे और LHS solve करके हमें इसको इक्वल लाना होगा RHS के. If we are getting on solving LHS is equal to RHS, अगर LHS को solve करने के बाद हमको RHS मिल रहा है और मिलेगा, अगर हम solve इसको बिल्कुल करेक्ट करेंगे, then our answer will be correct, and hence it is proved by mathematical induction.
अब देखिए LHS हम स्टार्ट कर रहे हैं, LHS क्या लिख रहे हैं, LHS AI प्लस BA की होल पावर K प्लस 1, इस LHS हमने स्टार्ट किया। Now we are writing this LHS is equal to, LHS से स्टार्ट किया, this is equal to, we can write it AI plus BA की होल पावर K into AI plus BA। In this way we can write it, देखिए बेस सेम है, लॉज ऑफ इंडिसेस x की पावर m इंटू x की पावर m दैट इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लॉज ऑफ इंडिसेस में वहां पर। सेम ai प्लस ba की होल पावर k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ai प्लस ba की होल पावर k इंटू ai प्लस ba। बेसिस सेम है, केस फंक्शन पावर ऐड होंगे, ये k है, इसकी पावर 1 है, ये मैं k प्लस 1 को एक्सप्रेस किया। नाउ सी, अब क्या करना हमको, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ai प्लस ba की होल पावर k। इस इक्वेशन से इससे वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हमने निकाली पहले ai प्लस ba की होल पावर k एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है और इस वैल्यू को हमें इसकी जगह रिप्लेस करना है, क्योंकि ये यहां पर इससे मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यू इसके इक्वल है। चाहो तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इक्वेशन नंबर 1 एंड विल राइट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ai प्लस ba की होल हम डायरेक्ट लगा देते हैं, चलो छोड़ो, वी आर राइटिंग इट्स वेरी डायरेक्टली। ai प्लस ba की होल पावर k की वैल्यू है a टू द पावर k I प्लस k a to the power k minus 1 ba, this. Now it's multiplying ai plus ba, right now from equation 1, from equation number 1, ठीक है, this is our equation number 1, ठीक। अब now मल्टीप्लीकेशन a टू द पावर k इंटू आई विल मल्टीप्लाई विद दिस होल, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, तो a की पावर k इंटू आई का हमने इससे इंटू किया। यहाँ पे देखिए ये बेस a है, यहाँ पर बेस a है, तो k से मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होगी, ऐड होगी, ये हमारे पास जाएगा a की पावर k प्लस 1 i इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया, इन प्रीवियस वीडियोस आई टोल्ड यू आई स्क्वायर हो, आई क्यूब हो, आई की पावर हो दैट इज इक्वल टू आई ओनली। हमेशा इन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई पावर हो आई के इक्वल ही होगी। अब a की पावर के आई का इंटू हमें करेंगे ba, दिस विल गेट, सो हियर वी कैन रिप्लेस इट, चलो नेक्स्ट में कर देते हैं, a की पावर के आई इंटू ba, सो विल राइट a टू द पावर के आई इंटू ba प्लस, अब देखिए ध्यान से, k a की पावर k माइनस 1 ba विल मल्टीप्लाई विद दिस ai, इस ai से मल्टीप्लाई करेगा। देखिए यहां पर भी a की पावर k माइनस 1 है, यहां पर a है, बट केस इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी नो दैट एक्सपोनेंट्स दे आर एडेड, तो क्या होगा प्लस k a की पावर k माइनस 1 और ये यहां प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। फिर ba इंटू आई प्लस, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे k a की पावर k माइनस 1 b इंटू b, b स्क्वायर a इंटू a दैट इज a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, b का इंटू b से किया b स्क्वायर, a का इंटू a से किया a स्क्वायर। अब बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आई स्क्वायर तो मैंने क्या बोला, इट बिकम्स आई ओनली,
तो ये आई स्क्वायर आई हो जाएगा, तो ये आएगा ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर, दैट बिकम्स आई ऑन आई इंटू ए, और ए इंटू आई दैट इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। पुरानी वीडियोस में मैंने आपको क्लियर किया है। तो ए टू द प्लस ए टू द पावर के आई इंटू ए दैट इज ए इंटू बी दैट इज बी ए प्लस -1 +1 करके यहाँ पे आपका के अगेन a into I that is a k a to the power k b a. Now see here what we are getting, plus k a की power k minus 1 b square a square plus k a की power k minus 1 b square into a square. This is matrix A is given to us. A हमें दिया हुआ है, हम इसकी a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, चलो यहाँ नीचे निकालते हैं इसकी वैल्यू। a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a इंटू ए। a इंटू ए का मतलब ये हो गया, a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 0 1 0 0, this into again 0 1 0 0, multiplication 0 into 0 0 plus 1 into 0 again 0 0 into 1 that is 0 plus 1 into 0 again 0 0 into 0 that is 0 plus 0 into 0 that is 0 0 into 1 that is 0 plus 0 into 0 that is 0, whole becomes 0 0 0 0 0, that is null matrix. Null matrix we are getting, that means a square is equal to 0. a square की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए आप, that means a to the power k plus 1 into I plus a की पावर के बी ए प्लस के a to the power k b a plus when this whole is multiplied with this 0, the resultant is 0, k a की पावर k minus b square into 0, यानी k a की पावर k minus 1 b square into 0, whole become 0, पूरा 0 हो गया। Try to understand. जब किसी को 0 से मल्टीप्लाई किया पूरा 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आई विल नॉट राइट इट। तो ये हटा दिया से हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 I प्लस a टू द पावर k b a प्लस k a की पावर k b a, ये हमारे पास है। दिस वी आर गेटिंग नाउ सी a की पावर k b is here, a की पावर k b is here, so we are taking common from here। इसमें से देखिए a की पावर k b यहाँ पर भी है, a की पावर k b यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, टेक इट कॉमन फ्रॉम दिस। सो a की पावर k प्लस 1 into I plus now we are taking a की power k b a common, so we get 1 plus k, this we are getting। Now see, when we are putting this for n is equal to k plus 1 on LHS, we are getting this। After solving this LHS, we are getting that LHS must be equal to RHS। a की पावर k plus 1 into I, a की पावर k plus 1 into I plus k plus 1 a की पावर k b a की पावर k b a 1 plus k, कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इट्स नो प्रॉब्लम। मैट्रिक्स में फर्क हो जाता है, a b into b a दोनों में फर्क हो जाता है, ये तो आपका सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो this we have proved, that means it is true for n is equal to 1, for n is equal to k, and for n is equal to k plus 1।
So hence LHS is equal to RHS. Hence we'll write LHS is equal to RHS. Hence it is true for, therefore it is true for n is equal to k plus 1. This will write hence it is true for n is equal to k plus 1. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में ये। तो हमको इस चीज पे ध्यान देना है कि इंडक्शन की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में 3 स्टेप आ जाने चाहिए। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये 3 स्टेप्स है। तो आप लोग इसको नोट करें और नोट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडक्शन। वो भी आपका इंडक्शन पे ही बेस्ड है। सो वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Now see question number 2. If a is equal to 1, 1, 1, 1, 1, 1, we are given that. Question number 2. If a is equal to 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, we have to prove that a to the power n. We have to prove that a to the power n. To prove means this we have to prove a to the power n is equal to 3 to the power n minus 1, 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 3 to the power n minus 1 and 3 to the power n minus 1. Where n belongs to n, n किसको belong कर रहा है? Where can write n belongs to n means natural number. Again कहीं पर भी आपको किसी में भी अगर n लगता है that means it is based on mathematical relation. दिस इज वैल्यू ऑफ ए, ये ए की वैल्यू है, ठीक। ये हमको प्रूव करना है ए की पावर एन इज इक्वल टू दिस। नाउ सी, अब इसको करने से पहले हम एक चीज बता दें आपको। ए इज गिवन टू अस, सेम मेथड, पी एन इज अवर प्रिंसिपल स्टेटमेंट। ये हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे कि जो ए टू द पावर है या किसी की पावर जहां एन लिखा होता है दैट इज अवर प्रिंसिपल स्टेटमेंट। ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट है हमारी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट। ए टू द पावर एन क्या लिखा हुआ है, चलो इसको एक बार लिखते हैं। ए की पावर एन इज इक्वल टू 3 टू द पावर एन माइनस 1, 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 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, again 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1 and 3 to the power n minus 1. These are what principal statement. लिख सकते हैं इस तरीके से Pn such that a to the power n is equal to 1. Now for n is equal to 1, step first, for n is equal to 1,
n की वैल्यू कितनी है 1. These are LHS, these are RHS. Now putting in this a की पावर 1 n, जहां n लिखा हुआ 1 पुट करना है और कुछ नहीं करना. This is equal to 3 to the power 1 minus 1, 3 to the power 1 minus 1, 3 to the power 1 minus 1. Similarly for second, 3 to the power 1 minus 1, 3 to the power 1 minus 1, and 3 to the power 1 minus 1, 3 to the power 1 minus 1, 3 to the power 1 minus 1, 3 to the power 1 minus 1. I think all of you understood well. समझ गए होंगे आप लोग. ये 1 minus 1, ये n कितना है? n कितना है? 1. This we are taking 1. केवल n को रिप्लेस करना, बाकी कुछ नहीं करना. इससे पहले मैं बताया था केवल n को चेंज करना, जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं n is equal to 1 या n is equal to k बस को, या n is equal to k plus 1, उसको n को रिप्लेस करना है और इसको कोई चेंज नहीं करना है. This shows that a की पावर 1, that is a itself, 1 minus 1 0. Just I have told you, मैं बताया था x की पावर 0, किसी की पावर 0 हो, 10 की पावर 0, 50 की पावर 0, किसी की पावर 0, that is always equal to 1. तो 1 minus 1 0, that means 3 to the power 0, 3 to the power 0, 3 to the power 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 to the power 0, 3 to the power 0, 3 to the power 0, and this is equal to 1 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 1. That means this is equal to whatever a is given to us. a की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करने पे n is equal to 1 पुट करने पे हमें वही सेम मिला, LHS is equal to RHS. Now second step is for n is equal to k. Our second step is for n is equal to k. Second step, that is for n is equal to k. Hence LHS is equal to RHS. It is true for n is equal to 1. आप लिखेंगे LHS RHS equal हो गया. चलो लास्ट में देना. Hence it is true for n is equal to 1. Now we are coming for n is equal to k. Now see, a to the power k, a to the power k, this is equal to a to the power k is equal to 3 to the power k minus 1, 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 and 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, and 3 to the power k minus 1. This is the value of a to the power k. Now it's true for n is equal to k also. Now we are coming to for third step, that is for n is equal to k plus 1. For n is equal to k plus 1, step number third, for n is equal to k plus 1. Now try to understand. k plus 1 बोला है, तो a to the power k plus 1, this is equal to 3 to the power n कितना है, k plus 1 minus 1. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और k plus 1 अगर आप minus 1 करते हैं तो 3 to the power k में आ जाएगा. देखिए 3 to the power n is what we have taken, k plus 1, so write down k plus 1 minus 1. Plus 1 minus 1 will cancel. आप 3 to the power k लिख सकते हैं, no problem. यहाँ पर again same thing we get 3 to the power k plus 1 minus 1, 3 to the power k plus 1 minus 1. Here again 3 to the power k plus 1 minus 1, 3 to the power k plus 1 minus 1, 3 to the power k plus 1 minus 1,
3 to the power a plus 1 minus 1 and 3 to the power a plus 1 minus 1, 3 to the power a plus 1 minus 1। देखिए मैं हर स्टेप आपको इससे क्लियर करके बता रहा हूँ, सब कैंसिल हो गया। आप इस फॉर्म में भी फाइनल रिजल्ट ला सकते हैं। और अगर दूसरा फॉर्म आपका हो जाता है, फॉर्म वही है, कुछ नहीं है, आपने -1 + 1 कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए, -1 + 1, दैट मीन्स अभी -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए, तो यू कैन राइट इट फर्दर, दिस इज इक्वल टू 3 to the power k, 3 to the power k, 3 to the power k, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड, 3 to the power k, 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 नो प्रॉब्लम। अब देखिए ऑन LHS वी आर गेटिंग a की पावर k + 1। अब LHS को हम सॉल्व करते हैं, RHS ले आए और LHS RHS सॉल्व हो गया, हमारा k + 1 प्रूव हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो LHS what we are getting on LHS, we are getting a की पावर k + 1, a की पावर k + 1, this we can write it a to the power k into a, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। I have told you when the bases are same, the base same होते हैं, case multiplication powers are always added, so this we can write it in this form। Now see, a to the power k, take it as what? This take it as equation number 1। Now see, a to the power k, the value of a to the power k, this value we will put in place of here, and the value of a is this। So putting these values, we will solve it LHS, and that must be equal to RHS। Now we are solving it further, so please write down till that time। a to the power k, that means a की power k + 1 LHS, a to the power k is how much? This we are writing now, 3 to the power k minus 1, 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 3 to the power k minus 1 into a की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने निकाली थी, सेम वैल्यू राइट इट हियर, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट। मल्टीप्लिकेशन हाउ यू नो इट, इन अर्लियर वीडियोस आई हैव टोल्ड यू, पुरानी वीडियोस में सब मैंने बता रखा है कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर k - 1 का इंटू इससे किया, तो 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 टू द पावर k - 1। और फर्स्ट रो का फिर थर्ड कॉलम से 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई है। और फॉर सेकंड रो, अगेन सेकंड रो विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद थर्ड कॉलम, अगेन वी गेट इट सेम वैल्यूज हियर, 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की k - 1। सिमिलरली हियर 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - प्लस 3 की पावर k - 1। सिमिलरली हियर 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1। एंड फॉर थर्ड ऑल्सो सेम, 3 to the power k - 1 plus 3 to the power k - 1 plus 3 to the power k - 1। Similarly here, 3 to the power k - 1 plus 3 to the power k - 1 plus 3 to the
k minus 1, 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1. After multiplication we are getting this. अब देखिए 3 की पावर k minus 1 प्लस सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है. If we are taking 3 की पावर k minus 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 plus 1 plus 1 ये मिलेगा फर्स्ट. दिस विल गेट और ये चीज हमको यहाँ मिलेगी, ये चीज यहाँ मिलेगी. सेम थिंग विल गेट इट हियर. इन ऑल दिस विल गेट सेम दिस थिंग. ये चीज मिलेगी. आप लोग समझ गए होंगे कि 3 की पावर k माइनस 1 का इंटू किया 3 की पावर का प्लस फिर इसका इंटू इससे किया ये फिर इसका इंटू इससे किया गया. ऐसे सेम थिंग विल गेट इट फॉर हियर एंड फॉर ऑल दिस. इन सब के आपको ये चीज मिलेगी. तो इससे बेस्ट मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट इनटू 3. Similarly here 3 to the power k minus 1 into 3. Similarly for this 3 to the power k minus 1 into 3. ठीक, इसके लिए भी सेम थिंग 3 to the power k minus 1 into 3. 3 to the power k minus 1 into 3. 3 to the power k minus 1 into 3. 3 to the power k minus 1 into 3. 3 to the power k minus 1 into 3 and 3 to the power k minus 1 into 3. Now see, bases are same. Base same है. केस मल्टीप्लीकेशन हर जगह देखिए आप केस मल्टीप्लाई कर रहा बेस सेम है. पावर्स क्या होंगी ऐड. पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी. तो 3 की पावर k minus 1 plus 1 दिस विल गेट इट फर्दर मिलेगा 3 to the power k minus 1 plus 1. 3 to the power k minus 1 plus 1. 3 to the power k minus 1 plus 1. That is 3 to the power k minus 1 plus 1. 3 to the power k minus 1 plus 1. 3 to the power k minus 1 plus 1. 3 to the power k minus 1 plus 1. 3 to the power k minus 1 plus 1. 3 to the power k minus 1 plus 1. देखिए अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. अगर इसमें हम माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल ना करें तो हमारे पास क्या आ गया. इसको हम कैसे k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 का फॉर्म आ गया सब जगह. यहाँ पर भी देखिए अगर हम इस 1 को इधर ले आए तो k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 उसी का फॉर्म है. कोई दिक्कत नहीं है. वहां हमने कैंसिल कर दिया, हम ये कैंसिल कर दें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. दैट मीन्स LHS और RHS हमारा इक्वल है होना चाहिए. वी आर गेटिंग सेम 3 to the power k 3 to the power k 3 to the power k. ये हमको LHS सॉल्व करने पे मिल रहा है एंड दिस इज इक्वल टू 3 to the power k 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 3 to the power k. ठीक. That means for n is equal to k plus 1. LHS ये तो हमने इस LHS को सॉल्व किया, LHS को सॉल्व किया, RHS सॉल्व किया, RHS किया, RHS अब इस LHS की इक्वल है. For n is equal to k plus 1. मैंने अभी आपको बताया हम इसको अगर नहीं कैंसिल करते हैं k प्लस 1 एक में रहने देते हैं माइनस 1 अलग उसी फॉर्म में मिल गया था हमको. यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं इसमें. फर्दर सॉल्व किया वी आर गेटिंग दिस एंड दिस RHS मस्ट बी इक्वल टू LHS. ये होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका प्रूफ नहीं है. व्हाटएवर यू हैव डन दैट इज यू हैव डन समवेयर एल्स मिस्टेक. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. अगेन इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन. ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन. ये अगेन इसको भी उसी मेथड से प्रूव करना है. a दे रखा है, a is given to us 3 minus 4 1 minus 1, then prove that a to the power n is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n, where n is any positive integer. n is any positive integer. This word n is any positive integer implies here belongs to natural number. Where n is a natural number, you can say. Now our main that is principal statement is this one. Pn
क्या है हमारे पास Pn a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। ये हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। ठीक, तो आप समझ लो प्रिंसिपल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें n होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। Pn मैं बता ही चुका हूं क्या है, a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n minus 4n then n then 1 minus 2n। स्टेप फर्स्ट for n is equal to 1, तो पहला स्टेप क्या हमारा, for n is equal to 1। now मैं समझता हूं 2 क्वेश्चंस पीछे मैं करा चुका हूं, you have done 2 questions, now it is clear to you where we have to put the value of n is equal to 1। हमें कहां पुट करना है, जहां पर n लिखा हुआ है, a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 4 1 एंड माइनस 1 एंड दिस फर्दर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ये इसके इक्वल हो गया। Now see, this a की power n is equal to this. After putting n is equal to 1, we are getting the value that is a. a की power 1 a हो गया आपका, यानी a की वैल्यू हमारे पास ये a आ रहा है, a आ रहा है, this a, और ये हमें a दिया हुआ, that is LHS is equal to RHS for n is equal to 1। ठीक, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे n 1 पुट करने वाला RHS में a की वैल्यू क्या है, that means for n is equal to 1 we write it is 2 for n is equal to 1। ये 2 है n is equal to 1 के लिए। now second step is for n is equal to k। step second you can write it step first here, step second here, for n is equal to k, because induction only involves 3 steps। for n is equal to k, that means a to the power k is equal to 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k। when it is 2 for n is equal to 1, now it is 2 for n is equal to k। now third step is for n is equal to k plus 1। step number 3 for n is equal to k plus 1 and this is our final step। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप n1, सेकंड स्टेप n is equal to k, थर्ड स्टेप n is equal to k plus 1। नाउ a की पावर k plus 1, a की पावर k plus 1 प्रिंसिपल स्टेटमेंट डालते हैं वैल्यू a to the power k plus 1, this is equal to 1 plus 2 k plus 1 minus 4 k plus 1, here it is k plus 1, here it is 1 minus 2 in bracket k plus 1। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें RHS, इस फॉर्म में भी आंसर आप ला सकते हैं, नो डाउट। इफ यू वांट टू सॉल्व इट फर्दर यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट इट आफ्टर सॉल्यूशन व्हाटएवर यू गेटिंग दैट मस्ट बी इक्वल टू LHS। तो ये सॉल्व करने में जो आपको मिलेगा वो LHS के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, इसको फर्दर सॉल्व करने में 2k plus 2, तो क्या मिलेगा 2k plus 2 करने पे व्हाट विल गेट 1 plus 2k plus 2 यानी 3 plus 2k, फिर मिलेगा -4 minus 4k minus 4, here it is k plus 1 minus 2k plus 1। ठीक, चाहे तो इसी फॉर्म में निकालो चाहे उस फॉर्म में निकालो, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। अब देखिए a की पावर k plus 1 जो LHS हमारा है that is a की पावर k plus 1, this we can write it a की पावर k into a, no problem। a की पावर k हमारे पास ये है, चलो
इसको हमने लिख दिया ए की पावर ए को यहाँ पे 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। अब इसको मल्टीप्लाई ना a से, a की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, इससे इंटू कर दो इसको, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1, इसका इससे इंटू किया हमारे पास मिला हमको, वी आर गेटिंग हियर 3 प्लस 6k माइनस 4k इंटू 1 दैट इज माइनस 4k। अब फर्स्ट टू का फिर करना सेकेंड से, दैट इज माइनस 4 माइनस 8k एंड प्लस 4k। k का इंटू इससे किया 3k, 1 माइनस 2 का इंटू इससे किया प्लस 1 माइनस 2k, k का इंटू माइनस 4 से माइनस 4k, 1 का इंटू इस माइनस 1 से 1 माइनस 2k का इंटू माइनस 1 से किया, सो माइनस 1 प्लस 2k। अब आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज इक्वल टू 6k माइनस 4k दैट इज 3 प्लस 2k, ठीक। 4 माइनस 8k प्लस 4k माइनस 4k। नाउ सी 3k माइनस 2k दैट इज k प्लस 1। नेक्स्ट माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k माइनस 1। देखिए हमारा आरएचएस आ गया है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास है, इसको आप सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। फिर मैं चाहो तो इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं और चाहे तो इसको इस फॉर्म में लिख दो, इस वाले को इस फॉर्म में लिख दो। देखिए मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, आप लोगों को इससे पहले में ही बताया था क्वेश्चन मैंने कि आप किसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2 सॉरी 2 का इंटू k प्लस 1 से क्या 2k प्लस 2 तो आएगा 3 प्लस 2k। 3 प्लस 2k जो हमें यहाँ मिल रहा है वो ये हमें मिल गया 3 प्लस 2k। ये जो हमें मिल रहा है माइनस 4k प्लस 1, इसको हम सॉल्व करें तो आएगा माइनस का 4k माइनस 4, वही लिखा हुआ माइनस 4k माइनस 1, वही, कोई कुछ भी अलग नहीं है। अब यहां देखिए लिखा 1 माइनस 2k, यहां लिखा 1 माइनस 2k माइनस 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वही लिखा हुआ है यहां पर हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2k। मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं जिसके आप दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो रिमूव हो जाए। देखिए इसकी वैल्यू जो लिखी 1 माइनस 2k प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करते हुए सॉल्विंग इट फर्दर वी आर गेटिंग दिस वैल्यू माइनस 1 माइनस 2k एंड दिस माइनस 2k माइनस 1, बोथ ऑफ देम आर सेम है। यहाँ देखिए k प्लस 1 ही मिल रहा है, यहाँ देखिए 3 प्लस 2k ही मिल रहा है, इसको हमने अब सॉल्व किया, यहाँ देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो ये चीज सेम यहाँ पे आ रही है। तो आप जिस वे में चाहे उस वे में आप लिख सकते हैं, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट एंड बोथ द वेज आर आल्सो करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये क्या है, इस 2 को ब्रेक करें, 3 को सॉरी इस 3 को ब्रेक करें 1 प्लस 2 में, ठीक है, फिर 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लें, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इसको जो है 2k माइनस के में ब्रेक कर दे, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फर्दर वी कैन राइट इट 1 प्लस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 minus 4 taking common k plus 1, then here it is k plus 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 minus 2 ब्रैकेट में k plus 1, तो ये इसके इक्वल हो गया। अगर ये लाना आपको
अगर आपको इससे ऊपर वाला जो बताया था मैंने सब वो प्रूव करना है, दोनों ही करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, कहीं कोई गलत नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन नाउ सी एलएचएस जो हमने सॉल्व किया, ये एलएचएस हमारी ये वैल्यू आई, एंड दिस एलएचएस, ये एलएचएस फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 में एलएचएस जो निकल के आया, दिस इज इक्वल टू ये हमारा आरएचएस है k प्लस 1 का। जस्ट सी बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों ही एक है। दैट मींस for n is equal to k plus 1 it is 2. Hence by mathematical induction we have proved that LHS is equal to RHS in all these three cases. Now see question number 4. If A and B are symmetric matrices, देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय हर वर्ड का मतलब समझने की कोशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं A and B, दिस शोज दैट वहां आपको बताएगा नहीं। Symmetric matrix we know that A dash is equal to A and B dash is equal to B. जब symmetric matrix का टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहां बताया था मैंने matrix square matrix set to be symmetric when A dash is equal to A means transpose of a matrix is equal to matrix itself. हम लोग प्रूव करना प्रूव दैट AB minus BA is skew symmetric matrix. skew symmetric matrix का क्या मतलब था? A dash is equal to minus A and B are symmetric matrices। अगर A and B symmetric matrices हैं और प्रूव करना AB minus BA is skew symmetric, this we have to prove। तो लिखेंगे if A and B are symmetric matrices, then A dash is equal to A and B dash is equal to B। ये कंडीशन होती है, A dash is equal to A and B dash is equal to B। This clear to everybody? Now we have to prove that AB minus BA, क्या प्रूव करना है? AB minus BA, this we have to prove this is a skew symmetric matrix। ये लिखा हुआ है AB minus BA is skew symmetric matrix। That means इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस ब्रैकेट में AB माइनस BA, इसके इक्वल होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। A dash is equal to minus A। Consider this whole matrix पूरे का एक थोड़े टाइम के लिए एज्यूम किया पूरा मैट्रिक्स A है सपोज, या AB minus BA की वैल्यू को K मान लें सपोज K, तो K dash is equal to minus K। यही कंडीशन है फॉर skew symmetric, दिस इज द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हमको ये लाना है, ये प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक, अब AB minus BA का होल ट्रांसपोज LHS को सॉल्व कर रहे हैं, AB minus BA का होल ट्रांसपोज इज इक्वल, जब बताया था मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू A plus B का होल ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिमिलरली A minus B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B डाउन। तो यहां लिखेंगे दिस इज इक्वल टू AB, ध्यान समझें आप लोग, A minus B मान लो तो AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज। ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस समय मैंने आगे प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज की, प्रोडक्ट में AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। थोड़ा ध्यान दें आप लोग, रिवर्सल लॉ जिसको बोलते हैं। तो AB का होल ट्रांसपोज दिस इंप्लाइज हियर B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। ठीक, A और B कैसी मैट्रिक्स? A ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है? A के, और B ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है? B के। सो पुट दोस वैल्यूज हियर, B ट्रांसपोज इक्वल टू B एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू A। BA minus A transpose again equal to A and B transpose again equal to B. Now see, BA minus AB, this we are getting. This we can write it in this form, इसको ऐसे लिख दें, minus AB
माइनस बी ए, वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं इसको, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी ए माइनस ए बी। तो ये हमको प्रूव करना था, ये चीज हमको यहाँ लेके आनी थी कि ये आपका ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स वी आर गेटिंग हियर, हेंस इट इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now see next question is question number 5. देखिए 5 question. Show that the matrix B dash AB is symmetric. Symmetric कह रहा है और skew symmetric. दूसरा बोल रहा है skew symmetric. According as A is symmetric और skew symmetric. अभी आपको मैंने symmetric skew symmetric question number 4 जो बताया था, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन भेज दिया और आप उसी पैटर्न से क्वेश्चन निकालेंगे। पहले आप ए सिमेट्रिक लेना, दैट मींस ए डैश इज इक्वल टू ए, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए करके सॉल्व करना। अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड सारे अननोन हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। If the matrix A is equal to, ये दे रखा 0 to y z, x y minus z, x minus y z, satisfy the equation। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करें? A dash means transpose of matrix A into A is equal to I। ये I लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 3 into 3 ऑर्डर का। I किस ऑर्डर का होगा? या वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। I will be of order 3 into 3। यहाँ पर I जो हम लेंगे वो 3 into 3 ऑर्डर का लेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स A ये दे रखा है, इसका चलो हम ट्रांसपोज यहाँ निकाल देते हैं। A डैश इज इक्वल टू, ये निकाल रहे हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 0 to y z, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम x y minus z, and third row becomes third column x minus y z। ये हमारे पास a डैश हो गया। देखा a डैश इंटू a, तो a डैश इंटू a इज इक्वल टू i। a डैश की वैल्यू में लिख रहे हैं x 0 x 2y y माइनस y z माइनस z, ये a ट्रांसपोज की वैल्यू है इनटू a। अब इसकी वैल्यू लगा रहे हैं हम, a हमारे पास जो है दैट इज 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z is equal to I 1 0 0 0 1 0 and next is 0 0 0 1। ये कंडीशन दी हुई है, a dash into a is equal to I। अब these two matrices are multiplying। आपने पुरानी वीडियोस में बहुत मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया है। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। ये क्लियर है? चलो हम एक बार फिर भी करके बता देते हैं आपको। फर्स्ट होता है इस फर्स्ट कॉलम से करना 0 into 0 दैट इज 0 x plus x square x plus x again plus x square। और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से जाएगा 0 into 2y दैट इज 0 प्लस x into y दैट इज xy एंड प्लस x into minus y minus xy। now 0 into z that is 0 x into minus z that is minus xz plus x into z that is plus xz। again 2y into 0 0 y into x plus xy minus y into x minus xy
2y into 2y, that is 4y square, plus y into y, plus y square, minus y into minus y, that is plus y square. Now 2y into z, that is 2yz, y into minus z, that is minus yz, minus y into z, that is minus yz, and z into 0, that is 0, minus z into x, minus zx, plus z into x plus zx, z into 2yz, minus z into y, minus yz, minus the z into minus y again, minus yz, z into z, that is z square, minus z into minus z, that is plus z square, and z into z, that is plus z square. This is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now see, x square plus 0, this becomes 2x square. Minus xy plus xy cancels out, you are getting 0. Here you are getting 0. Again minus zx plus zx, that is 0. xy minus xy again 0. 4y square plus y square plus y square, that is 6y square. 2yz minus yz minus yz, that is minus 2yz, and this plus 2yz, again we are getting 0. Minus xz plus xz, 0. 2yz minus yz minus yz, that is again 0. Z square plus z square plus z square, that is 3z square. This is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now what to write? Now these two matrices are equal. Equality of matrices, corresponding elements equal कर दिया. The value of 2x square is equal to 1. Taking equating corresponding elements. Now we are getting, here we are simplifying. 2x square is equal to, that is x square is equal to 1 upon 2, and x is equal to plus minus 1 upon under root 2. This is the value of x. Similarly, 6y square is equal to 1. Now see, for next, 6y square is equal to 1. So y square is equal to 1 upon 6, and y is equal to plus minus 1 upon root 6. And 3z square is equal to 1. See, 3z square is equal to 1. Z square is equal to 1 upon 3. And z is equal to plus minus 1 upon under root 3. So now listen, these are the values of x, y, z. ये हमारे पास जो है x, y, z की वैल्यू है. x की वैल्यू प्लस माइनस 1 upon root 2, y is equal to plus minus 1 upon root 6, and z is equal to plus minus 1 upon root 3. Now see question number 7. For what value of x? ये x की वैल्यू निकालनी है. ये आपको तीन मैट्रिसेस दे रखी इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका if a is equal to 3 1 minus 1 2, then show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0. ये क्वेश्चन आप नोट करें और ये होमवर्क में करेंगे आप लोग. ये ऐसे क्वेश्चंस पीछे मैंने एक्सरसाइज में करा रखे हैं, आप लोगों ने सॉल्व किए हैं. सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, इसको आप होमवर्क में करेंगे. सो यू राइट डाउन इट एंड सॉल्व इन योर होमवर्क. इसे आप होमवर्क में करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. आप मल्टीप्लिकेशन, तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से मैंने डिस्कस किया था आपको, तब बताया था कुछ
कुछ कंडीशन दी थी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं? 3 रोज 1 2 3, ठीक। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। चलो करते हैं। अब देखिए उससे पहले हमारे दिमाग में भी कंसेप्ट होना चाहिए, इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 into 3 है और इसका ऑर्डर हमारे पास 3 into 3। मैं इसलिए लिख रहा हूं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज दैट इज 3। ये कंडीशन होती है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगा किसका ऑर्डर रहेगा 1 into 3। 1 into 3 means 1 row and 3 columns. It will contain 1 row and 3 columns। तो मल्टीप्लाई करने से पहले बहुत से बच्चे सोचते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो वहां बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से उनको मल्टीप्लाई करना, कैसे करना, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या बनेगी और एक्स वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो हमको जो मैट्रिक्स बन के आएगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 1 into 3, ये 1 और 3 इस ऑर्डर की बन के आएगी, ठीक। तो हमें कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बन के आएगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 1 into 3। 1 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जो मैट्रिक्स बन के आएगी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का into 1 से 1, 2 का into 2 से प्लस 2, 2 to the 4, 1 plus 4, प्लस 1 का into 1 से प्लस 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 का into 2 से 2, प्लस 2 का into 0 से 0, प्लस 1 का into 0 से 0। अब देखिए 1 का into 0 से 0, प्लस 2 का into 1 से 2, प्लस 1 का into 2 से 2। अब ये हमारे पास फिर यहां पे हमने लिखा 0 to x and this is equal to 0। अब इसको फर्दर 1 plus 4 plus 1 that is 6, this is 2 and this is 4। इसको मल्टीप्लाई करना हमें किससे 0 to x and this is equal to 0। अब जरा बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। सेम कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, ये मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज, दिस इज फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल, दिस सेकंड, दिस थर्ड, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है। इसका ऑर्डर 8 रो है, 3 कॉलम, 1 into 3। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज 3 into 1। नाउ वी गेट अ मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर 1 into 1। उस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको मिलेगी। Now try to understand 6 into 0, so 0 plus 2 into 2 that is 4 plus 4 into x plus 4x, this is equal to 0। That means 4 plus 4x is equal to 0, 4x is equal to minus 4 and x is equal to minus 1। This is the value of x। The value of x is equal to minus 1, तो ये x की वैल्यू आ गई। Now see question number 9, again we have to find the value of x। इस x की वैल्यू निकालनी है हमको, जहां पर x लिखा हुआ है, ठीक। Same condition is given to us, the matrices are multiplying and their resultant is equal to 0। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। x का into 1 से किया x, minus 5 into 0 that is 0, minus 1 into 2 that is minus 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। x into 0 that is 0, minus 5 into 2 that is minus 10 and minus 1 into 0 that is 0। Now again x will multiply with this 2 that is 2x, minus 5 into 1 that is minus 5 and minus 3 into 1 that is minus 3। This into x for 1, again this is a matrix is equal to 0। This is a column matrix।
Now see x minus 2, 0 minus 10, that is minus 10. We can write it here. X minus 2 minus 10, 2x minus 8. This will multiply with this x for 1 is equal to 0. x minus 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सॉरी x से, we'll get x square minus 2x. माइनस 10 का इंटू करेंगे 4 से, दैट इज माइनस 40. अब 2x माइनस 8 का इंटू करेंगे 1 से, सो प्लस 2x माइनस 8 and this is equal to 0. Minus 2x plus 2x cancels out. X square minus 40 minus 8 minus 48 is equal to 0. So x square is equal to 48, and this implies that x is equal to under root plus minus 48. X is equal to plus minus under root 48. 16 3s are 48. So x is equal to plus minus 4 root 3. This is the answer of x. This is the value of x. ये value x पे आई, आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Now see, we are coming to question number 10. Question number 10 हमारा है. इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, a manufacturer produces 3 products x y z. ये 3 प्रोडक्ट्स हैं which he sells in 2 markets. इन तीनों प्रोडक्ट्स को 2 मार्केट्स में बेच रहा है. Annual sales are indicated below. ये annual sales देखिए, market first and this market second. Products in market first are 10,000, 2,000, 18,000, and for second market products are 6,000, 20,000, 8,000. There are 3 products x y z. If the unit price of x y z are rupees 2 rupees 50 paisa, for first x is 2 rupees 50 paisa, for y 1 rupees 50 paisa, and for z it is rupees 1 only. ये आपको x y z की यूनिट प्राइस रखी है, means price of one piece, unit means 1. Find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. Means we will find its matrix multiplication. Try to understand कि matrix multiplication से matrix algebra means matrix multiplication से हमको इसकी जो है revenue निकालनी है. Each market means for first market we have to calculate separately and for second market we have to calculate it separately. दोनों की निकालनी है. उसका B part कह रहा है, B part is saying if the unit cost of above 3 commodities are rupees 2, then rupees 1 and 50 paisa only. ये यूनिट कॉस्ट रखी है, कॉस्ट ऑफ वन आइटम, दैट इज x का रुपीज 2 है, y का 1 रुपीज है और z का 50 पैसा है. Both of them are in rupees and this only in paisa. Respectively, find the gross profit. ये पार्ट हमको सॉल्व करना है. अब देखिए, now what we will do? सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे let the unit price of x y z. तो x y z हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जो भी हमने लिखे हैं, is rupees 2 rupees 50 पैसा, 1 rupees 50 पैसा and rupees 1. ये हम लिखेंगे. ये लिखने के बाद then write total revenue for market first. Total revenue. We have to find this only. Total revenue निकालनी है market first की. So we'll write in matrix that is 10,000, 2,000 and 18,000. Price per unit is given to us 2 rupees 50 paisa, 2 rupees 50 paisa.
₹1.50 and ₹1 only. Now see, I think now it's clear to you. अब आप बिल्कुल क्लियर हो क्या करना है आपको. Only you have to multiply. आपको केवल इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं करना, टोटल रेवेन्यू निकालना है. मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई. ऐसे ही आपको क्वेश्चन पहले आया था, 2 क्वेश्चन आए थे इस टाइप से. एक डजन बनाया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, और एक 5% 7% पे अमाउंट 30,000 भरा था, उसमें भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज किया था और टोटल इंटरेस्ट दे रखा था. तो वैसे यहाँ पे केवल मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. तो 10,000 इंटू ₹2.50, 10,000 इंटू ₹2.50 प्लस 2,000 इंटू ₹1.50, 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1. इनको मल्टीप्लाई करना हमको. अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10,000 इंटू 2.50 मीन्स ₹2.50 का इंटू करेंगे 10,000 से, तो कितना हमारा आएगा 25,000. 2,000 का 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ मच विल गेट इट 3,000. आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए. प्लस 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1 दैट इज 18,000. ठीक. अब इन सब का टोटल करने के बाद कितना मिल रहा हमको, व्हाट हाउ मच वी आर गेटिंग 25 प्लस 3 28 प्लस 18 दैट इज 46. So we are getting this is equal to 46,000. So from market first the total revenue is ₹46,000. ये टोटल रेवेन्यू मार्केट फर्स्ट के निकल गया है. अब क्या करना है, टोटल रेवेन्यू फॉर मार्केट सेकेंड. तो फर्स्ट मार्केट निकल गई है, दोनों की निकालनी है. ईच मार्केट, ईच वर्ड को आप लोग ध्यान दिया करें. क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ा करें, बहुत बारीकी से. क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी प्राइस दे रखी है, कैसे क्या निकालना है. सो दिस इज द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट. नाउ फॉर सेकंड मार्केट आल्सो वी राइट सेम थिंग. बाकी तो चीज वही लिखनी है, प्राइस वही दे रखी है आपको, ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1. बट द प्रोडक्ट्स और क्वांटिटीज आर चेंज्ड हियर. यहाँ पर उनकी क्वांटिटी चेंज कर रखी है, तो हम लिख रहे हैं फॉर सेकंड मार्केट टोटल रेवेन्यू. अब ये जो क्वांटिटीज दी हुई हैं, इन क्वांटिटीज को हमको चेंज करना है. तो पहले कितना इसमें दे रखा 6,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000. यहाँ पे कितना 20,000, इस जगह लिखेंगे हम 20,000, और इस जगह हमारे पास 8,000, दिस इज 8,000. सो ही विल राइट 8,000. वी विल नॉट चेंज दिस वन, इसको चेंज नहीं करेंगे. ₹2.50, ₹1.50 और ₹1 को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्राइस दोनों मार्केट्स के लिए सेम है. अब ये जो हमें इसको सॉल्व करना है, अब समझें आप, सेम मेथड यूज करना है. 6,000 इंटू ₹2.50 टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप लोग देखें 6,000 इंटू 2.50 कितना आएगा, दैट विल गिव यू 15,000. 20,000 into 1.50, that will give you how much? 30,000. And 8,000 into 1, that will give you 8,000. आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, जो 20 here you will get 6,000 into ₹2.50, that is 15,000. 15,000 ये हमारे पास यहाँ पर आ गया. 15,000 प्लस 20,000 into ₹1.50, that is 30,000. 30,000
6000 ये हमारे पास आ गया, प्लस 8000 इंटू 1 दैट इज 8000, प्लस ये 8000 ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 15,000 प्लस 30,000 45,000 and 45,000 plus 8,000 that is 53,000. So 53,000 this is the total revenue in rupees. ये total revenue हमारे पास आ गई of market second market की total revenue आ गई। अब इसके बाद जो next part मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए first part हमारा हो गया, अब second part पे आ गए। Second part जो बोला if the unit cost means cost of one of above three commodities are rupees 2, rupees 1 and 50 पैसा only, इन तीनों के यूनिट प्राइस है, हमें इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए इसमें लिखकर पहले आप यूनिट कॉस्ट ऑफ एक्स वाई जेड कॉमोडिटीज और आइटम्स आर रुपीज 2, रुपीज 1 एंड 50 पैसा। ना टोटल कॉस्ट निकालेंगे ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स इन मार्केट फर्स्ट, पहले फर्स्ट मार्केट की निकालेंगे इसकी, फिर निकालेंगे सेकंड मार्केट की, क्योंकि यहां पर भी अलग अलग निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है, मार्केट यहाँ पे दो दी है, दोनों में अलग निकालना पड़ेगा। तो फॉर मार्केट फर्स्ट टू राइट टोटल कॉस्ट, इस मार्केट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी वो चाहे यहाँ लिख दें, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहला कितना 10,000 दैट इज 2,000 एंड 18,000। अब प्राइस ये कितनी दे रखी है, यूनिट कॉस्ट कितनी है, रुपीज 2, रुपीज 1 एंड 0.50 दैट इज 50 पैसा। ये ध्यान दें, आप लोग कुछ ध्यान देते हैं, जैसे ही आप चाहे वैसे इंटू कर देते हैं, कई बार कहाँ डेसिमल लगाना, क्या करना, कुछ करना आपको, और फिर जल्दी में फिर बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब क्या करना, वही सेम मेथड 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.50। तो अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट आप लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू करके, नो डाउट ऊपर वैसे लिख ही दिया, इंडिकेट्स टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट फर्स्ट 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.50। दिस फॉर मार्केट फर्स्ट ओनली, ये मार्केट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.50, 50 पैसे का मल्टीप्लाई करना, 1/2 रुपये का हाफ हो गया, तो 9,000 20,000 plus 9,000 29 plus 2 31. This is equal to rupees 31,000. This is the total cost of market first. ये total cost market first है हमारे पास। अब one more part is left for market second. Market second के लिए हमारे पास अभी रह गया है, उसको कैसे करना है, सेम मेथड फॉर मार्केट सेकंड, यहां मार्केट फर्स्ट यहां पर नोट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट ये आ गई मार्केट फर्स्ट की। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट सेकंड, तो यूनिट कॉस्ट दे रखी है, टोटल निकालनी है। तो अब देखिए फॉर मार्केट सेकंड टोटल कॉस्ट, अब देखिए मार्केट सेकंड की वैल्यूज क्या क्या है, प्राइस भी, प्राइस तो वही सेम है, चलो मिटा दिया, कोई बात नहीं। टोटल कॉस्ट देखिए मार्केट सेकंड के लिए 6,000
20,000 and 8,000. This price, that is rupees 2, rupees 1 and 0.50 पैसा. सेम मेथड जैसे अभी हम मल्टीप्लाई किया था हमने, उसी तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है. और आपने बहुत मल्टीप्लिकेशन किए हैं इसमें मैट्रिक्स में. तो 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू 0.50. 6,000 into 2, that is 12,000. 20,000 into 1, that is 20,000. And 8,000 into 0.50, that will give you 4,000. ये हमको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला. अब इन सबको हम ऐड करते हैं तो 12,000 plus 20,000, 32,000 plus 4,000, that is 36,000. 36,000 rupees, 36,000 is the total cost of market second. अब एक पार्ट पूछा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड दोनों का. तो मार्केट फर्स्ट में हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितनी आई थी, ये पार्ट आप निकालेंगे. मार्केट फर्स्ट में हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितनी थी हमारे पास, ध्यान दो जरा, 46,000 टोटल रेवेन्यू फॉर मार्केट फर्स्ट हमारे पास. और टोटल कॉस्ट मार्केट फर्स्ट की कितनी हमारे पास आई थी, टोटल कॉस्ट आई थी 31,000 रुपीज. तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट फॉर मार्केट फर्स्ट, या वो नोट कर लिया होगा. तो अब देखिए प्रॉफिट बताते हैं कैसे निकालना है. प्रॉफिट फॉर मार्केट फर्स्ट, प्रॉफिट निकालना फर्स्ट मार्केट का. टोटल रेवेन्यू कितनी थी मार्केट फर्स्ट के हमारे पास, ₹46,000. ध्यान दें, थोड़ी पहले बताया था आपको. तो प्रॉफिट के लिए क्या करना हमको, टोटल रेवेन्यू में से दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें. शॉर्ट में दिया टोटल रेवेन्यू TR, टोटल रेवेन्यू माइनस TC टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू कितनी थी हमारे पास, ₹46,000 थी हमारे पास उसकी, माइनस टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 31,000. सो 31,000 इसको हमने माइनस कर दिया, एंड दिस वी आर गेटिंग रुपीज 46,000 माइनस 31,000, दैट इज रुपीज 15,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट for market first. Now similarly for market second, अब आप मार्केट सेकंड का निकालें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप जैसे मार्केट फर्स्ट का किया है इसी तरीके से प्रॉफिट फॉर मार्केट सेकंड, या सेकंड कर दें इसको, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये एज इट इज रहने दें. अब इसकी देखिए ये दोनों वैल्यूज चेंज हैं, इसकी दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितनी आई थी मार्केट सेकंड की, 53,000 पास दी टोटल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट कितनी अभी निकाली थी हमने, 31,000. सो 53,000 रुपीज 53,000 मैथ से आप जो है कितना सब्ट्रैक्ट करना आपको, कितनी आई थी इसकी, 36,000 टोटल कॉस्ट, 36,000 जो अभी निकाली थी आप लोगों ने, 36,000. 53,000 माइनस 36,000 दैट इज इक्वल टू
17,000 ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है मार्केट सेक्टर है. नाउ सी, सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट और फाइंड द वैल्यूज. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द मैट्रिक्स X. ये मैट्रिक्स X के वैल्यू निकालनी है. सो दैट X, now this is the matrix 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6. बड़े ध्यान से देखिए, ये x का यानी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. When x is multiplying with this matrix, जब x इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट्स यू नो द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. ठीक, लेट अस टेक लेट मैट्रिक्स X, let X is equal to A, B, C, D. This we have taken the value of X. X only A, B, C, D. Number of columns कितने हैं? 1 2. Number of rows 1 2. Now X is multiplying with this matrix and this is equal to this matrix. So now we multiply as per the condition. We will write here A, B, C, D into matrix 1 2 3 4 5 6, and this is equal to -7 -8 -9 2 4 6. Now we will find the value of ABCD, and ABCD will be the required matrix X. हमें ये ABCD निकालना है और ये ABCD की वैल्यू होगी वही इस मैट्रिक्स X की होगी जो आपसे पूछा फाइंड द मैट्रिक्स X. ठीक, तो अब आप देखिए ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका इससे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. तो A का इंटू 1 से किया you will get A, B का इंटू 4 से किया प्लस 4B. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया फिनिश. अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे 2A प्लस 5B. सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी फिनिश हो गया. फर्स्ट रो का फिर थर्ड कॉलम से. मैं इसलिए ऐसे बार बार आपका दिला से आप कभी भी मिस्टेक ना करें. 3A प्लस 6B. अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से हो गया ये वैल्यूज आ गई. अब हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम C इंटू 1 दैट इज C प्लस 4 इंटू D दैट इज 4D. C का इंटू से किया 2C प्लस 5D. उसके बाद इसका किया 3C प्लस 6D. दिस इज इक्वल टू इसके इक्वल दिया -7 -8 -9 2 4 6. नाउ सी, अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, वेरी सिंपल. नाउ जस्ट सी, अब आप समझ गए होंगे और फिर नाउ हैव अंडरस्टूड A plus 4B equating like coefficients means when two matrices are equal then their corresponding parts are always equal. देखिए A plus 4B किसके इक्वल होगा? -7 के. 2A plus 5B this will be equal to -8 and 3A plus 6B this is equal to -9. ठीक है, हमको ABCD निकालनी है. आप कोई अगर आप इसको लेंगे तो -7 के इक्वल लिखेंगे. देखिए इक्वेटिंग दी corresponding terms we will get A plus 4B is equal to -7.
आप इसको लेंगे तो इसके इक्वल करेंगे, इसको लेंगे तो आप इसको इक्वल करेंगे। चाहे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से ए बी निकाल लो, चाहे इसको करके, चाहे कैसे भी करें, वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी सेम, यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज इफ यू आर चेंजिंग दीज इक्वेशंस। आप इन इक्वेशंस को इसका इससे निकाला या इसका इससे निकाला, लेकिन वैल्यू जो आएगी ए और बी की वो बिल्कुल सेम आएगी। सेकेंड इक्वेशन हमने चलो इसको लिया 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो सॉल्व करने के लिए, इसको सेकंड। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स आप सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चलो ना हम किसी इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 एंड 2/1 इनके कोफिशिएंट्स एक। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करने का क्या वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू आई एम राइटिंग डायरेक्टली। 2 का इंटू ए से किया, वी आर गेटिंग 2a प्लस 2 4s are 8b, 2 7s are this is equal to -14। a का ऑप्शन 1 का इंटू इससे किया, वी आर गेटिंग 2a plus 5b is equal to -8। Now we are subtracting, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक ऑप्शन बराबर हो गए। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस, ये प्लस से माइनस, यहाँ माइनस से ये प्लस, साइन चेंज करते हैं। एडिशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी नेवर चेंज द साइन, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वी ऑलवेज चेंज द साइन। ये वैनिश कैंसल्स आउट। 8b minus 5b that is 3b is equal to -14 plus 8 that is -6. So b is equal to 3b is equal to -6 and b is equal to -2. This is the value of b. b की वैल्यू हमारे पास ही आ गई -2. Now put the value of b either in equation number first or in equation number second. किसी में पुट करें, आपको ऐसा लगे तो बहुत स्टूडेंट ने समझ सेकंड में पुट की वैल्यू और ए का आंसर कुछ और आया, और जब फर्स्ट में पुट की उसका कुछ और आंसर आया। कभी नहीं होगा। दैट मीन्स अगर इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, दैट मीन्स यू आर डूइंग मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन। लिखेंगे पुट द वैल्यू b is equal to -2 in equation number 1। फर्स्ट में डालो a plus 4 into b, a plus 4 into b that is -2 is equal to -7, a minus 8 is equal to -7, a is equal to -7 plus 8 that is 1। तो a कितना मिला हमको, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, a हमने यहाँ 1 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी मिली हमको, b इज इक्वल टू -2। चलिए a b मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड 2 मोर, दैट इज c एंड d। इनको और निकालना है। सिमिलरली c plus 4d विल बी इक्वल टू 2। यहाँ हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, c plus 4d is equal to 2। Name it as equation number 3। 2c plus 5d, 2c plus 5d is equal to, किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगी, 4। इक्वेशन नंबर 4। अगेन नाउ सेम मेथड आप लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे आप लोग, इस मेथड से कर रहे हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सी की वैल्यू निकाल के आप पुट करके एज यू विश। ऐसे आप कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 by 2, इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद की वैल्यू लिख रहा हूं। आफ्टर व्हाट वी आर गेटिंग 2c plus 8d is equal to 4। Multiplying equation number 3 by 2 we are getting this, and equation number 4 by 1
we are getting 2c plus 5d is equal to 4. Now subtract it. Minus minus minus. 8d minus 5d, that is 3d. 4 minus 4, that is 0. d is equal to 0. The value of d is 0. d की वैल्यू कितनी है? 0. Again, put the value of d is equal to 0 in either of these two equations. इन दोनों में से आप किसी में d की वैल्यू पुट करते हैं. Put d is equal to 0 in equation number 3. 3 में पुट किया हमने. c plus 4 into 0 is equal to 0. Sorry, c plus 4 into d. Equation क्या है? c plus 4 into d is equal to 2. This is the equation. And the value of d is 0. So c plus 4 into 0 is equal to 2. c is equal to 4 into 0. That is 0. c is equal to 2. So the value of c is 2 and the value of d is 0. तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वैल्यू ऑफ c is 2 and वैल्यू ऑफ d is equal to 0. ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आई हैं. अब मैट्रिक्स हमारी क्या थी? x किस फॉर्म में थी? a b c d. राइट डाउन दीज वैल्यूज व्हिच यू हैव कैलकुलेटेड. ये वैल्यूज जो हमने व्हिच वी हैव वैल्यूज ये कैलकुलेट की हैं, बस इन वैल्यूज को उसी ऑर्डर में लिखना है. सो मैट्रिक्स x आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने निकाला है. अब मैट्रिक्स x को मैं लिखने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ a b c d, जो वैल्यूज निकाली हैं इन दैट टर्म. सो मैट्रिक्स x विल बी इक्वल टू a इज हाउ मच? a इज 1, b इज हाउ मच? -2, c is how much? 2, and d is how much? 0. ये हमारे पास मैट्रिक्स x निकल के आई है. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x. सारे कैलकुलेशंस के बाद ये हमने मैट्रिक्स x निकाली है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आपके ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Now see, next question is our question number 12. Next question हमारा question number 12 है और देखिए आप लोग ध्यान से. This question is based on induction. आपको मैंने स्टार्टिंग के 3 questions उसी इंडक्शन पे कराए हैं. इस पे क्वेश्चन देखते हैं. If A and B are square matrices of same order, स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों के सेम होंगे, such that AB is equal to B, then prove that by induction that a b की पावर n is equal to b की पावर n to a. First part. Second, further prove that a b की whole power n is equal to a to the power n b to the power n for all or for every n belongs to n, means n belongs to natural number. Now see, this question I am giving you for homework. ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल ऐसे बताया. फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, वही सब यूज करना है. उसके यूज करके आपको इम्प्रूव करना है. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन कमेंट आप करें, मुझे बताएं, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 जो हमारा है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन लिखा हुआ है a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i. अब यहाँ पर i आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए. इट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट i is a unit matrix of order 2 into 2 because this matrix a is of order 2 into 2. कंडीशन दी a स्क्वायर इज इक्वल टू i, देन ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. इसमें किसकी वैल्यू करेक्ट है, क्या आपका आंसर आ रहा है. देखिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं क्या आपका आंसर करेक्ट होगा. a स्क्वायर मींस a to a का a से इंटू करना,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अगेन इसका इंटू हमने किया अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से। पहले ए स्क्वायर निकाल लें, फिर ए स्क्वायर को हम आई के इक्वल कर देंगे। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, अल्फा इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। Now alpha into beta, that is alpha beta. Beta into alpha, that is minus alpha beta. Gamma into alpha, that is alpha gamma. Minus alpha into gamma, that is again minus alpha gamma. Gamma into beta, that is gamma beta. And minus alpha into minus alpha, that is plus alpha square. Now see, this becomes 0, cancels out, this becomes 0. So a square we are getting alpha square plus beta gamma. Here we are getting 0. Alpha gamma minus alpha gamma again 0. And here we are getting gamma beta plus alpha square. Now the condition is given to us, that is a square is equal to I. This value a square is equal to I. Now put it equal to I. So a square I am writing here the value of a square alpha square plus beta gamma 0 0 gamma beta plus alpha square. This is equal to I, that is 1 0 0 1. Equality exists, और स्टेट यू इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये दोनों इक्वल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1. अब क्योंकि इक्वल टू 0 है दिया हुआ है, इसको ट्रांसफर किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देखिए 1 यहाँ पे कहीं माइनस का है नहीं है, सारे 1 पॉजिटिव है. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ राइट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म 1 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0. तो देखिए कौन सा आंसर निकला, इससे मैच हो रहा है. 1 minus alpha square minus beta gamma, 1 minus alpha square minus beta gamma is equal. आंसर सी इसका है. ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आपका आंसर है. Now see next question, that is second last question of this exercise, miscellaneous question number 14. देखिए क्या लिखा है, what is written? If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, ऐसा मैंने जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पढ़ाई थी आपको वहाँ बताया था, उस समय मैंने आपको इसका आंसर दिया भी था. वही यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा गया है. आप लोग ध्यान देना, उस वीडियो के अंदर आप दोबारा देखना तो आपको आंसर मिलेगा. उस वीडियो के अंदर मैं आपको आंसर दे चुका हूँ उस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, B part A is a zero matrix and C part A is a square matrix, D part none of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है that is part number B. A is a zero matrix. वहां मैंने बताया था null matrix, zero matrix acts as a symmetric and a skew symmetric matrix. तो इसका हमारा जो ऑप्शन है, आप देखिए जीरो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी काम करेगा और स्क्यू सिमेट्रिक का भी काम करेगा. null matrix. Now last question of this exercise is, if A is a square matrix such that A square is equal to A square की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, A की, then 1 plus A का होल क्यूब minus 7A is equal to किसके इक्वल है. 4 options are given for this question. First is A option दे रखा है A, B ऑप्शन में लिखा हुआ I minus A, ऑप्शन C only I and ऑप्शन D 3A. इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान दें.
अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको पहले a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a, ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप x प्लस वाई का होल कोई भी यूज करें आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, चाहे a प्लस b कुछ भी करें, फॉर्मूला एक ही बनता है, एक ही रिजल्ट आएगा आपका। अब थोड़ा आप ध्यान दें, यूनिट मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, इसमें स्क्वायर करें क्यूब करें पावर 4 10 दैट इज इक्वल टू आई ओनली। आई इंटू आई स्क्वायर करें, आई क्यूब करें, आई पावर 4 कुछ भी लगाएं, वो आई के इक्वल होता है। दिस वैल्यू चेंजेस इनटू आई, क्योंकि मैं बताया पहले भी आपको कई जगह क्लियर भी किया है। प्लस ए क्यूब, दिस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, दिस ओनली ए क्यूब प्लस अगेन 3 स्क्वायर दैट इज आई एंड आई इंटू ए, पहले के क्वेश्चंस कराए, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। कभी भी यूनिट मैट्रिक्स का अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, कहने का मतलब ये है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स, तो आई स्क्वायर दैट इज आई एंड आई इंटू ए दैट इज ए प्लस 3 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इस ए स्क्वायर को हटा देंगे, here we will write in place of a square a because it is given to us, ये हमें दिया हुआ है, a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के, माइनस 7a। अब देखिए अगले स्टेप से पहले मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे i इंटू ए और a इंटू आई दैट इज a, तो i यहां से हटा दिया, ये वैल्यू हमारे पास 3a हो गई, ठीक। a स्क्वायर, ये a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, i प्लस a स्क्वायर की वैल्यू क्या a, तो यहां पर हम a लिख रहे हैं और ये फिर a लिखा हमने a इंटू ए प्लस 3a दैट इज 6a, 3a प्लस 3a दैट इज 6a माइनस 7a, ठीक। अब a इंटू ए क्या जाएगा, अगेन ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए की, दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, चलो नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं, 6a माइनस 7a दैट इज इक्वल टू माइनस a, 6a माइनस 7a दैट इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a, सो नाउ रिप्लेस दिस a स्क्वायर by a plus a minus a, this becomes 0, a minus a that is 0 and this is equal to I. So our final result answer is I. This shows that part number C is the correct answer of this question. तो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें आपका पार्ट नंबर C जो है वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया है। Now I think that all of you have gone through this exercise. आप लोग सभी इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखें, मिसलेनियस एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बस आपको 1-2 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपने प्रीवियस किए हैं या उससे रिलेटेड हैं। अगर उसमें भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करें, अपना भेजें कमेंट, ठीक है, जिससे मैं आपकी नेक्स्ट टाइम वो डाउट सेशन में क्लियर कर दूं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। जिन फ्रेंड्स को मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की बाद में कॉल आई कि सर हमें वीडियो बाद में पता चला है, तो मैंने उनसे कहा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं एक दूसरे को, और उसके थ्रू आप इसको पूरा प्रॉपर्ली देखें करें। और चैनल इसी यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें इसको, मतलब जो है एप्टीट्यूड जोन।
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इसको बराबर ध्यान से देखें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से हम आपको पूरा दे रहे हैं, क्वेश्चंस हर चीज़ आपको दे रहे हैं, इसमें स्कूल भी आपको पूरा प्रोवाइड कर रहा है हर तरीके से आपको मटेरियल देने के लिए, मतलब तो आप लोग इस पर बहुत ही ध्यान दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, इससे वीडियो देखें सभी लोग, क्वेश्चंस निकालें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के, हो सकता है कि मैं आगे आपको लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करूँ, तो उसका मैसेज मैं आपको बता दूंगा, अगर लाइव पॉसिबल होगा तो मैं लाइव क्लास लेने की कोशिश करूँगा, वो आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि वीडियो एक भी मिस मत करें, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने बड़े ही आराम से, बहुत ही आसानी से हर चीज़ बड़े ऐसे क्लियर की है जैसे किसी बहुत छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों के मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप लोग 12th क्लास हो गए, आप लोगों के लिए ये सारे टॉपिक्स न्यू हैं और न्यू टॉपिक्स को आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक्स है, इसलिए मैंने इस तरीके से उनको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि आप हर बच्चे को हर तरीके से समझ में आ जाए। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। और कुछ बच्चों कमेंट भी आ रहे हैं, सर आपने जो वीडियोस भेजी हमने देखी हैं और देखने के बाद हमने सारे क्वेश्चंस निकाल लिए उस एक्सरसाइज की और बोला भी सर कि कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई है, जैसे आपने समझाया उसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस निकाले हैं और हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही कह रहा हूँ लास्ट में कि आपके पास बहुत ही ये गोल्डन टाइम है, इस टाइम में आप प्रॉपर पूरा टाइम यूटिलाइज करें और पूरी वीडियोस देखें प्रॉपरली, क्योंकि अब मैंने आपको चैप्टर 3 की स्टार्टिंग से लेके हर एक्सरसाइज की एंड तक की सारी वीडियोस डाल रखी है क्वेश्चन फॉर्मेट में, हर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डाल रखी है। तो आप अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस पार्टिकुलर वीडियो को निकाल के देखें आप किस क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, उसका बेसिक क्या दिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटेन ऑन द वीडियो so that you cannot have any confusion. I hope that now this our chapter 3rd is finishing. Now it is finished. We can say if you are having any doubt, so comment it and hope that you will watch each and every video very carefully. Thanks a lot.